brief introduction of the syllabus with you. So we will be all, I think you are all medical students, beta. So we will be all having the different type of our topics discussed, as well as with a different type of our subject subtopics discussed in our 11th standard or in our new standard. As in the previous discussions with you were having in especially your 10th standard electricity, you completed magnetism, you completed optics also beta. So these were the and also you have discussed your sources of energy beta. So these were the units you studied in detail in your lower or 10th standard rather. Now beta, when you are all in your 11th standard beta, you will be studying beta, in this case some topics related to your motion beta. We will be dealing with the motion, different type of motions कौन सी हैं. Then beta after that we will have the rigid body dynamics discussed. Rigid body, what do we mean by rigid body, and what are the different ways and means by which the rigid body, it may rotate, it may get its translational motion, and as such, all that. After that, we will be having the case of our gravitation. Gravitation chapter you will be studying in a little bit detail as per your previous discussion you have completed so far. And after that, we will be having our solid state, rather something physical property in terms of physical properties related to your solids beta. So that we will discuss in very much detail. And after that beta, we will be having the detailed discussion regarding our chapter beta. You can say wave motion and oscillations beta. So dear children, let me once again recapitulate all the ideas, rather make a list of all the topics or the ideas we are going to study in our 11th standard beta. So first of all beta, we will deal with the physical world, and measurements beta. In this chapter beta, in the chapter of your physical world and measurements beta, we will be getting involved into the process of the measurement, that how do we measure the different physical quantities, and what do we mean by the term physical quantity, and how the different type of errors they may be dealt with while dealing with the physical quantities and all that. We will also be having a special reference to the units beta. What do we mean by the term unit, and what are the different type of units with it, and how we can convert a physical quantity from one system of units into the other system and all that. And we will also be taking the case of the dimensions in this chapter beta. So this is a little bit, you can say that bit a lengthy chapter. We will devote some, say 20, around about 20 periods upon this particular chapter beta. We will also be dealing with some mathematical tools, mathematical formulas which we will be needing in order to discuss this chapter in detail beta. So iske baad bete, we will be having the case of your second chapter beta, motion. In motion beta, we may be having one dimensional motion beta. We will have one dimensional, then we will have two-dimensional motion, and we will have beta then three-dimensional motion and all that. After that beta, we will have the chapter of our work, energy, and power beta. You have already learned the basics about this chapter in your previous class. Maybe in 9th standard you have discussed something related to your work, energy, and power. So we will be elaborating this chapter further beta. And after this chapter, we will have laws of motion beta. Laws of motion. You might be remembering that in our lower standard, in our lower class beta, we were having the Newton's laws of motion discussed,
and then we were having some consequences of Newton's laws of motion and all that. This chapter absolutely beta deals with the different laws of motion, but at the same time beta, now the study will be a little bit broad. We will be rather discussing more topics in relation to this particular laws of motion. We will also be dealing with some of the conservation principles in this laws of motion chapter beta. After that beta, let us come with the new chapter, that is our beta rigid body dynamics beta. Rigid body dynamics. Beta, rigid body, by the term rigid body, we mean that the body which is possessing some definite volume, which is possessing some definite shape, and which is occupying some space as such. In this case, beta, the word dynamics, it means motion. We may be having different type of motion related to our rigid body, maybe simple translatory motion. ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब बेटे ये है कि आपकी ऑब्जेक्ट, आपकी बॉडी जो अंडर ऑब्जर्वेशन है वो सीधी सीधी मूव कर रही है. एंड देन बेटा ये चैप्टर जो है आपका, इट इज बेटे अ लिटिल बिट बेटे मैथमेटिकल इन नेचर. इसमें आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल इक्वेशंस, मैथमेटिकल टर्म्स जो हैं इनके साथ डिटेल में डील करना होगा. वी विल बी डीलिंग विद दीज टर्म्स इन वेरी मच डिटेल एज सच. देन आफ्टर दैट बेटा रिजिड बॉडी डायनेमिक्स चैप्टर जो है आपका, इसके बाद बेटे हमारे पास बड़ा सिंपल सा चैप्टर है, दैट इज यूर बेटे ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशन जो चैप्टर है, आप लोअर क्लासेस में स्पेशली 9th क्लास में इसके बारे में बेटे काफी पढ़ते रहे हो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, स्मॉल जी क्या है, कैपिटल जी क्या है, इनमें रिलेशनशिप क्या है, स्मॉल जी कैसे कैसे वेरी करती है, कौन कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं. तो ये स्टडी आपने काफ़ी इसके साथ रिलेटेड कर रखा है. तो वी विल बी अगेन रिपीटिंग द थिंग्स, बट एट द सेम टाइम वी विल बी रादर एडिंग समथिंग टू द एग्जिस्टिंग ऑलरेडी डिस्कस्ड बेटा अवर टॉपिक्स बेटा. देन बेटे इसके बाद हमारे पास बेटे जो बात आ जाएगी, दैट विल बी रिलेटेड टू द केस ऑफ अवर आफ्टर दिस चैप्टर बेटा. We will be dealing with the mechanical properties, or simply mechanics, you can say that beta. Mechanics और mechanics में आप बेटे जो especially deal करोगे, this is बेटे related to your in mechanics beta you will have to deal with the solids, you will have to deal with beta liquids, and you will have to deal with the gases बेटे also. ये चैप्टर आपका जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा चैप्टर है. इसमें काफ़ी आप मैथमेटिकल डिटेल भी पढ़ोगे, प्रॉपर्टीज़ पढ़ोगे सॉलिड्स की, लिक्विड्स की, गैसेस की, कि किस हिसाब से इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया जा सकता है. आफ्टर दैट बेटे वी हैव हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स बेटा. In thermodynamics and heat chapter beta, we will be learning the basics related to the heat, concept of heat, and what do we mean by heat energy, what do we mean by the other basic related things to our heat. And in case of thermodynamics beta, we will try to relate the heat energy and the work done, and some other parameters related to your work done and heat especially beta. इस चैप्टर के बाद बेटे हमारे पास एक बड़ा छोटा सा चैप्टर है, दैट इज बेटे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बेटे, इस चैप्टर में बेटे आप स्पेशली इस चीज के साथ डील करते हो कि जो गैसेस हैं इनका बिहेवियर जो है अंडर डिफरेंट टेम्परेचर्स और विद द हीट कंटेंट, ये कैसे वेरी करेगा इनका बिहेवियर. और गैसेस को हम बेटे किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, मोनोएटॉमिक, डाईएटॉमिक, ट्राईएटॉमिक गैसेस के केसेस में,
और उसके बाद हम बेटे डिस्कस करेंगे डिटेल में इनकी प्रॉपर्टीज को स्पेशली बेटा. एंड आफ्टर दैट बेटे अवर 11th चैप्टर इज बेटा वेव्स एंड ऑसिलेशंस बेटा. वेव्स एंड ऑसिलेशंस, ये आपका बेटे एक सिंपल सा छोटा सा चैप्टर है. एंड इन द एंड वी विल बी हैविंग अनदर चैप्टर दैट इज बेटे योर साउंड वेव्स बेटा, और सिंपली आप वेव मोशन भी इसको बोल देते हो. तो ये बेटे आपके सिलेबस के साथ जान पहचान थी. यहाँ पे बेसिक्स आपने जो सारा साल पढ़ने हैं बेटा, सारा साल जितना भी आपने फिजिक्स कंप्लीट करना है. एक बार मैं बेटे दोबारा फिर से आपको आइए ये सारे जो चैप्टर्स हैं इनके बारे में ब्रीफली विद इन ए मिनट आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ बेटा. बिल्कुल पहला चैप्टर हमारा बेटे फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट्स का है. इस चैप्टर में आप अपना बेटे जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं इन क्वांटिटीज के बारे में स्टडी करोगे कि व्हाट डू वी मीन बाय फिजिकल क्वांटिटीज, उनको मेजर कैसे करना है और उनमें जो एरर्स वगैरह होती हैं उनके साथ कैसे डील करना है, और अगर एरर आ जाए तो हमारे रिजल्ट में कितनी एरर होगी, डायमेंशंस क्या है, और हमने कन्वर्शंस कैसे करनी है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में. इसके बाद बेटे हमारे पास बात आ जाती है मोशन चैप्टर. सेकंड चैप्टर हमारा मोशन के साथ डील करता है. आपने 9th स्टैंडर्ड में बड़े अच्छे से बेटे अपना स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन वगैरह डिस्कस कर रखी है. तो ये चैप्टर बेसिकली उन्हीं चीज़ों के साथ रिलेटेड है, बट इसमें थोड़ा सा डिटेल आ जाता है. जितना काम आपने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में कर रखा है वो तो है ही है. इन एडिशन टू दैट इसमें थोड़ी सी डिटेल आ जाएगी बेटे, एंड वी विल बी हैविंग दैट डिटेल इन अ गुड मैनर. वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये आपका बच्चों थर्ड चैप्टर है. इस चैप्टर में बेटे हम वर्क डन क्या है, इसकी टाइप्स क्या हैं, एनर्जी क्या है, और एनर्जी कंजर्वेशन जो है ये क्या होता है, एनर्जीज जो हमारी हैं बेटा इनको हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में वर्क डन के साथ रिलेट कैसे कर सकते हैं, ऑल दैट वी विल बी हैविंग बेटा. इसके बाद हमारे पास बेटे चैप्टर आ जाता है लॉज ऑफ मोशन का चैप्टर. लॉज ऑफ मोशन चैप्टर जो हमारा है इसमें बेटे न्यूटन्स लॉज क्या हैं और न्यूटन्स लॉज के साथ हम कैसे डील कर सकते हैं, न्यूटन्स लॉज के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, और जो न्यूटन्स लॉ के कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनके साथ रिलेटेड हमारे और बेसिक पैरामीटर्स कौन कौन से हैं. वी विल बी ऑल डीलिंग विद दोज पर्टिकुलर लॉज बेटा. और आफ्टर दिस चैप्टर लॉज ऑफ मोशन बेटे हमारे पास आ जाता है डियर चिल्ड्रन, दिस वाज योर फोर्थ, आई शुड हैव रिटन दिस एज फिफ्थ बेटे, नंबरिंग आई थिंक गड़बड़ हो गया है. दिस इज द रिजिड बॉडी डायनेमिक्स बेटा. इसमें आप रिजिड बॉडी आपका जो है सॉलिड बॉडी आपकी जो है इसके साथ रिलेटेड बेसिक पैरामीटर्स क्या हैं, इन बॉडीज को जब आप मूव करवा देते हो इनका मोशन कितनी टाइप का होता है, कैसे मूव करती हैं, वी विल बी डीलिंग विद दिस ऑल इन डिटेल. आपका 6th चैप्टर जो है ये बेटे ग्रेविटेशन चैप्टर आपका जो है स्मॉल जी, कैपिटल जी और स्मॉल जी की वेरिएशन कैसे होती है, इन सारी चीजों के साथ बेटे जो है ये डील करेगा. एंड आफ्टर दैट बेटा वी हैव अ लिटिल बिट लेंथी चैप्टर है ये आपका मैकेनिक्स का. सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस के साथ ये डील करता है. इसमें आपके सॉलिड्स की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या हैं, लिक्विड्स की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या हैं, और गैसेस की जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं ये क्या है. वी विल बी डीलिंग विद दिस ऑल इन डिटेल. एंड आफ्टर दैट बेटा हमारे पास बात आ जाती है देन हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की बेटा. जैसे डियर चिल्ड्रन नाम से ही क्लियर हो जाता है हीट एनर्जी क्या है, हीट एनर्जी और मैकेनिकल वर्क ये कैसे रिलेटेड हैं, और आप कितनी हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो, एंड ऑल दैट. सो दिस चैप्टर विल बी डीलिंग विद दिस ऑल. और इसके साथ ही साथ बेटा हम यहाँ पे आपने जरूर सुना होगा लोअर क्लासेस में कि आपका आइसोथर्मल एडियाबैटिक ये प्रोसेसेस जो हैं इस ऐसा कुछ आपने सुना होगा. तो वी विल बी डीलिंग विद दीज ऑल इन डिटेल इन दिस क्लास, इन दिस चैप्टर बेटा, इन द केस ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स आल्सो. एंड फाइनली आपके पास आ जाता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बेटा. इस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम बेटे गैसेस जो हैं ये अंडर प्रेशर
कैसे मूव करती हैं, कितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगी और हीट का, टेम्परेचर का इनके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। वी विल डील विद दिस ऑल इन डिटेल बेटा। देन बेटा वेव्स एंड ऑसिलेशंस, ये हमारा जो चैप्टर है वेव्स एंड ऑसिलेशंस का बेटा, ये बेसिकली डील करता है कि आपकी ऑसिलेटरी मोशन कैसी होती है, आपकी वाइब्रेटरी मोशन कैसी होती है, इनकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं। तो ये बेसिक्स हैं आपके बेटा वेव मोशन की। एंड फाइनली इन द एंड बेटा आपका चैप्टर कंप्लीट वेव मोशन या साउंड वेव्स आप जो है we will be dealing with this in very much detail. So dear children, this was our overview of the syllabus. I hope आपको सारे students को syllabus के साथ काफी अब जान पहचान हो गई होगी। I'm unmuting हरनूर कौर 11th B class। हरनूर कौर बेटा, हरनूर कौर 11th B class, roll number 11 सॉरी। हाँ जी बेटे, you are unmuted। हरनूर कौर बेटा, यस बेटे, इज दिस इंट्रोडक्शन, ये सिलेबस का सारा आपको बेटे सारे बच्चों को पता चल गया, सारे स्टूडेंट्स को? यस सर। सारा समझ आ गया कौन कौन से चैप्टर्स, कौन कौन से टॉपिक्स आपने पढ़ने हैं सारा साल बेटा? यस। ओके नाइस बेटे। सो बेटे इसके बाद मैं बिफोर बेटे की कुछ एक्चुअली डिस्कस करना स्टार्ट करूं, कुछ बेसिक बातें आपसे बेटे करने वाली थी कि हमारा जो है मोड ऑफ स्टडी क्या होगा, कैसे हम चीज़ों को पढ़ेंगे और आपको किस तरीके से जो है ये सारे का सारा काम करना है, मैंने किस तरीके से आपको ये सारा टीच करना है। तो वी विल बी डिस्कसिंग, वी विल बी डीलिंग विद दिस थिंग बेटा। 2 मिनट आपके लूंगा इस चीज़ पे बेटा। सबसे बेटे ज़रूरी है, देखिए फिजिक्स है आपका, फिजिक्स में a little bit mathematics is also बेटे इन्वॉल्व। और आप लोग सारे बच्चे बेटे मेडिकल वाले बच्चे हैं, तो आप लोगों को फिजिक्स सब्जेक्ट जो है और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, बिकॉज आप मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते हैं, लेकिन फिजिक्स आपके उस मैथमेटिक्स के पार्ट को सप्लीमेंट करता है। अगर आप मैथमेटिक्स जैसे नहीं भी पढ़ते हो तो काफ़ी ज़्यादा आप इसमें पढ़ लेते हो, तो दैट विल बी ए प्लस पॉइंट फॉर यू। एंड एट द सेम टाइम बेटा अगर हम इसको दूसरी तरफ से सोचें तो आप बेटे बीच में ये भी देख लीजिए कि थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी पढ़ रहे हैं, आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कंपेयर टू द अदर चिल्ड्रन ज़्यादा करना पड़ेगा। सो दोनों तरफ आप सोच सकते हो। एक तो आपको देखो बच्चों बेनिफिट है कि आप मेडिकल वाले हैं, आप मैथ नहीं पढ़ रहे, आप बायो पढ़ रहे थे, अब आपको लकीली फिजिक्स में मैथ भी काफ़ी मिलेगा, 25% मैथ मिलेगा, आप कर लोगे। और सेकेंडली आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि आपने तो मैथ पढ़ना नहीं था, आपको ये 25% इसमें पढ़ना पड़ेगा, तो उस 25% के लिए आपको 25% एफर्ट्स ज़्यादा भी करने पड़ेंगे। दिस इज व्हाट आई मीन टू से। सेकेंड चीज़ जो मैं आपसे शेयर करनी चाहता था बेटा, दूसरी बात बेटे ये है कि जब भी आप बेटे ये वाला सब्जेक्ट पढ़ोगे, फिजिक्स पढ़ोगे, आपने एक अपना बेटे सेपरेट नोटबुक जो है वो फिजिक्स के लिए लगा लेना है। मैं वैसे जनरली बच्चों को कहता नहीं हूँ कि आप लिखिए नोट करिए, बट बेटे आप लोग मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं तो आपको मैं ज़रूर कहूँगा कि जितना आप नोट कर सकते हो, जितना आप लिख सकते हो, आप एक सेपरेट नोटबुक फिजिक्स के लिए ज़रूर लगा लीजिए। उससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप जैसे मैं टीच कर रहा हूँ आप साथ साथ थोड़ा हिंट वगैरह लिखी जा रहे हो, या आप प्रॉपरली भी कई बच्चे नोट कर लेते हैं, ऐसी भी बात नहीं है, तो आपका बेटे 50% प्रैक्टिस यहीं पे साथ ही हो जाएगा और आपके 50% एफर्ट्स बच जाएंगे। और इन सिंपल वर्ड्स बेटा आप जब ये सारा चीज लिख के करोगे आपको चीजें भूलेंगी नहीं। अदरवाइज जब हम नहीं लिखते फिर बेटे क्या होता है, तब हमें बेटे ये लगता है कि हमें चीज आती है, और नो डाउट आती भी होती है, लेकिन बेटे हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम जो है ये कुछ ऐसा है कि उसमें लिखे हुए के नंबर आपको मिलेंगे। आपको चीज आती है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन जो पेपर चेक करने वाला बंदा है उसको नहीं पता कि बच्चे को आता है कि नहीं पता। वो तो सिर्फ आपके पेपर में लिखा हुआ देखकर ही अंदाजा लगाएगा ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स अवार्डेड टू यू कि क्या बच्चे को आता है कि नहीं आता है। सो डियर चिल्ड्रन, ये मैं बहुत जोर देकर आपको बात कह रहा हूँ कि आप लोगों को जो भी हम फिजिक्स का काम करेंगे उसके लिए एक बेटे प्रॉपर नोटबुक मेंटेन कर लेनी चाहिए। तो साथ साथ जितना आप मैक्सिमम लिख सकते हो जरूर लिखिए, और साथ ही साथ मैं किसी को बेटे कंपेल भी नहीं करता कि आप जरूर लिखो, ऐसी भी कोई बात नहीं है।
अदरवाइज अगर आप बिना इन चीजों को लिखने के मैनेज कर सकते हो तो दैट इज योर प्लस पॉइंट, आप अच्छी बात है। लेकिन मेरा पर्पस सिर्फ इतना था बेटा कहने का कि आप लोग इन द एंड किसी भी तरीके की आपको मुश्किल ना लगे कि देखो जी पता नहीं ये क्या कैसी इक्वेशन सर ने लिख दी है, ये क्या आ गया है, तो इन चीजों से हम फिर बचे रहते हैं। देन एक चीज और है बेटा, जब आप 11th स्टैंडर्ड में हो गए हैं, आप अपना प्रीवियस जो मोड ऑफ स्टडी है जैसे आप पढ़ते थे, आपको अब उस तरीके से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको बेटे अब अपना जो स्टडी का पैटर्न है उसको थोड़ा सा अपनी जरूरत के अकॉर्डिंगली बदल लेना चाहिए। तो आप देखिए कि आपकी कहाँ पे कमी रही है जो प्रीवियस ईयर्स हैं उनमें, और आपको अब आपका फर्दर एम क्या है, आपका टारगेट क्या है, और आपने अपने टारगेट को कैसे अचीव करना है। तो वेरी सून बेटा मैं कोशिश करूंगा कि हम अपना जो 11th का एक फिजिक्स का ग्रुप है वो अलग बना लें। सो वी विल बी डिस्कसिंग द थिंग्स इन दैट ग्रुप आल्सो। कई बार मैं असाइनमेंट वगैरह दे दूंगा आपको, कोई न्यूमेरिकल दे दूंगा, सो दैट कि जब तक आपका ये ऑनलाइन स्टडी मोड चल रहा है आपको ये जो है साथ साथ थोड़ा थोड़ा आप इन टच रहें असाइनमेंट्स के थ्रू, या बेटा छोटा मोटा वर्कशीट्स के थ्रू, या समथिंग अदर रिलेटेड टू बेटा द सेम। So this was बेटे our basic introduction related to the syllabus, our mode of work and all that बेटा। So किसी भी स्टूडेंट ने बेटे कोई भी बात पूछनी है तो पूछिए, फिर मैं सिलेबस बेटे एक्चुअल में स्टार्ट करूँ। सो यस बेटे डियर चिल्ड्रन, कोई भी बच्चा कोई भी चीज कोई बात आपके माइंड में है तो जरूर अपना हैंड रेज करिए, पूछिए। आई विल बी अनम्यूटिंग यू, देन बेटा वी विल स्टार्ट विद अवर एक्चुअल डिस्कशन। यस बेटा, वेटिंग फॉर योर कमेंट्स बेटा। Should I start? Anjali, roll number 1, 11th B class. You are unmuted, Anjali. Yes, sir. हाँ जी अंजलि बेटा बोलो, सारा समझ आ गया बेटा? हाँ जी सर। सब कुछ अच्छे से? हाँ जी। यस सर। ओके बेटे, आप लोगों को पता चल गया कि हमने कैसे काम करना है, कैसे हमारा पढ़ने पढ़ाने का तरीका रहेगा, ठीक है जी? सो आई होप यस सर। बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया, सारे बच्चों को पता चल गया होगा। आपके मैसेजेस भी आ रहे हैं, गुड बेटा, वेरी नाइस विद दैट ऑल। सो आइए बेटे, अब मैं जो हमारा एक्चुअल में सिलेबस है, हाँ जी जोतप्रीत, वेरी नाइस, रमन गुड, ठीक है बेटे, लेट्स बिगिन विद नाउ अवर एक्चुअल सिलेबस, एक्चुअल डिस्कशन बेटा। हम बेटे अपना जो वेरी फर्स्ट चैप्टर है इसको स्टार्ट करने से पहले 2 पीरियड्स इस बात पे डिवोट किया करते हैं, इस टॉपिक के ऊपर डिवोट किया करते हैं कि हमारे जो बेसिक बेटा बेसिक फोर्सेस इन नेचर कौन कौन सी हैं बेटा, कौन कौन सी बेसिक फोर्सेस हमारी नेचर में हैं जिनके साथ हम बेटे डील करते हैं, और कौन कौन से हमारे बेसिक लॉज ऑफ मोशन जो हैं जिनको हम जरूर हमें पता होना चाहिए सो दैट कि हम अपने 11th स्टैंडर्ड में इजीली स्टेप इन कर सकें। सो डियर चिल्ड्रन, बेसिक फोर्सेस इन नेचर जब भी आप बात करते हो, इसमें सबसे पहले आपके पास ग्रेविटेशनल जो फोर्स है डियर चिल्ड्रन, इसका कंसेप्ट आपके पास बेटे आ जाता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है और कैसे हम बेटा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसको मैथमेटिकल फॉर्म में डिस्कस कर सकते हैं, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है एंड ऑल दैट। एंड आफ्टर दिस ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा वी हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक, या इसको बेटे कूलम्स भी बोल देते हैं, कूलम्स फोर्स। ये आपका बेटा सेकंड फोर्स है जिसके साथ आप डील करते हो अपने नेचुरल एग्जिस्टिंग फोर्सेस की अगर हम बात करें। थर्ड फोर्स आपके पास है बेटा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बेटे। एंड फोर्थ आपके पास है बेटा वीक न्यूक्लियर फोर्स बेटा। तो ये बेटे आपके पास डिफरेंट फोर्सेस इन नेचर हैं जिनके साथ हम बेटा डील करेंगे वन बाय वन, इनको स्टडी करेंगे, और इनको स्टडी करने के बाद ही हम बेटा हमारा जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है
उस टॉपिक के ऊपर फोकस करने वाले हैं। आइए बेटे कंसंट्रेट करें, हमारा जो बेसिक फोर्सेस इन नेचर हैं, इन फोर्सेस के रिगार्डिंग सबसे पहले जैसे आपने ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की है, आइए जरा देखें कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये है क्या, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ हम बेटा कैसे डील कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बेटा इमेजिन कर लीजिए आपके पास कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स यूनिवर्स में पड़े हैं। दिस इज ऑब्जेक्ट हैविंग मास से स्मॉल m बेटा, एंड हियर वी हैव अनदर ऑब्जेक्ट हैविंग मास से m2। इन दोनों के सेंटर्स के बीच स्मॉल r के बराबर का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है। बच्चों मैं रिपीट कर रहा हूं, इनके सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस इतना है, यहां से बॉडी की साइड से लेकर नहीं, सेंटर से लेके बेटे। अगेन इमेजिन कर लीजिए दो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे, m1 m2 मास है इन दोनों का, इनके सेंटर्स के बीच में स्मॉल r के बराबर का बेटा डिस्टेंस हमने रखा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू बेटे ग्रेविटेशनल फोर्स, हमारा एक बेसिक न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसके साथ बेटे डील करता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इस लॉ के अकॉर्डिंगली बेटा कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स आपके यूनिवर्स में अगर कहीं पे भी प्रेजेंट हैं, तो वो जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं बेटा उनके बीच में एक वीक अट्रैक्टिव फोर्स हमेशा एग्जिस्ट करता है। एंड वो जो वीक इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, दैट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। और बेटा दूसरी बात ये है, इट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द स्क्वायर of the distance, rather inversely dependent upon the square of the distance between their centers बेटा। अब मैं क्या करता हूं, इसको और इस इक्वेशन को बेटे ज्वाइन कर देता हूं, इनको इकट्ठी कर देता हूं बेटा। अगर हम इनको इकट्ठी कर लें इक्वेशंस को बेटा, इनको कंबाइन करने के बाद हमारे पास बच्चों बात आ जाएगी कि हमारा जो f है दैट इज बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये जो आपका प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, इट कैन बी एलिमिनेटेड बेटा। सो यू कैन से दैट f इज इक्वल टू कैपिटल G, ये आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, आप इसके बारे में काफी डिटेल में ऑलरेडी जानते हैं, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, इसके बराबर आ जाएगा बेटे। कैपिटल G के यूनिट्स वगैरह कई बार आपको निकालने की जरूरत पड़ जाती है, तो आप यहीं से निकाल सकते हो। आप कैपिटल G को ऐसे रख लीजिए, एंड it will be f into r square divided by m1 and m2। फोर्स आपका न्यूटन में और डिस्टेंस आपका मीटर्स में और मास आपका केजी में आ जाएगा, और कैपिटल G जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसके बेटे यूनिट्स जो है आपको मिल जाएंगे। और डियर चिल्ड्रन, यू माइट बी रिमेंबरिंग इट्स वैल्यू, दैट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये न्यूमेरिकल वैल्यू याद रखिएगा, इसकी जरूरत आपको पड़ती रहेगी बेटा। फिर से ध्यान दीजिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बेटा, इट इज वन ऑफ द वीकेस्ट फोर्स नोन इन नेचर। ये बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है, सबसे वीक फोर्स है ये, और ये अट्रैक्टिव इन नेचर है, कभी रिपल्सिव नहीं होता बेटा। आप अपने यूनिवर्स में कहीं पे भी कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो इमेजिन कर लीजिए। m1 m2 के मास के मैंने दो ऑब्जेक्ट्स इमेजिन किए, इनके सेंटर्स के बीच में स्मॉल r का डिस्टेंस है, और f आपका मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट के प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट है, और इनके सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर पर इनवर्सली डिपेंडेंट है। हमने इनको कंबाइन कर लिया बेटा। कंबाइन करने के बाद आपके पास जो f है दैट इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर आ जाएगा बेटा। आप इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को एलिमिनेट कर दीजिएगा, f विल बी इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। कैपिटल G के यूनिट्स निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया, टर्म्स को रीअरेंज कर लीजिए, कैपिटल G को आप सिंपली लेफ्ट साइड पे ले जाओ, यू विल गेट इट बेटा। और दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ योर कैपिटल G, दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बेटा। और हमेशा याद रखिए कि आपका जो कैपिटल G है बेटा, ये क्योंकि आप इसको बेटे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोल रहे हो, इट इज कांस्टेंट ऑलवेज एंड एवरीवेयर।
it doesn't vary from planet to planet, from one place to another place on a particular planet, or it doesn't vary with height or depth, and it is never zero even at the center of the earth or any other point. Why it is not so? Because we say that it is universal, gravitational, constant beta, and because it is constant, that's why its value will never be changing beta. So this was it is something regarding your gravitational force. तो दो चीजें आपको याद रखनी है, ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है नेचर में एग्जिस्ट कर रही है जो, और ये अट्रैक्टिव इन नेचर है, और बाकी आपको ये इसका जो रिलेशनशिप है इसके बारे में थोड़ा अंदाजा जरूर होना चाहिए बेटा. सो इसके बाद बेटे मेरे पास जो सेकंड फोर्स है इन द नेचर, मे आई होप कि सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है बेटा ये. I can see Mithali on the screen, roll number 18. Is it clear बेटा? चलें आगे. ओके बेटे, नाइस. बेटे मैं फिर वही बात कहूंगा, आप कहें कि सर बार बार कही जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बेटे नोट जरूर करिएगा, उससे आपको बेटे आपको एंड में पता चल जाएगा कि आपका छोटा छोटा लिखने का इंपॉर्टेंस जो है एंड में आपको जरूर पता चलेगा. सो कंटिन्यू राइटिंग योर हिंट्स और एज सच ऑन योर बेटा नोटबुक्स बेटे. सो इसके बाद बेटे मेरे पास सेकंड है, दैट इज अवर बेटे कूलम्स फोर्स. इसको बेटे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कह देते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेटा. सो बेटे ये आपकी पॉइंट चार्जेस के बीच में एग्जिस्ट करने वाली फोर्स है जो रेस्ट पे होते हैं. तो मैं अभी इसके बारे में डिटेल में बात नहीं कर रहा हूं, बिकॉज अब मुझे टाइम नहीं अलाउ कर रहा है बेटे डियर चिल्ड्रन. सो आई एम बेटा देन अगेन विशिंग यू very happy, very prosperous next class, so that you may come up with your flying colors or study well, do work hard, and beta in the end fulfill your aims beta. So thumbs up from my side to you all beta. Now time is not allowing me, and I am beta leaving them. Okay beta, thank you all beta.